Dear students, if we discuss the electronic configuration of the various elements present in the periodic table, then we can write the electronic configuration like here is the hydrogen. So hydrogen, you know the configuration, and that is 1s1. The next is helium, atomic number 2. We write the configuration 1s2. Then it is lithium. It belongs to the second period, so it has the number of shell 2, and we write the configuration 1s2 2s1. Actually this is 1s1, this is 1s2. It means the 1s2 is over, and after 1s2 what comes? That is the outer configuration 2s1, and overall configuration 1s2 2s1. Here comes 1s2 2s2, and here comes 1s2 2s2 2p1. If outer shell configuration we write, then we can say 2s2 2p1. This is 2s2 2p2. This is 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6, and up to here 1s2 2s2 2p6 over. And what comes next? That is the next element, sodium, belongs to the third period. It means the number of shells are 3, and we write 1s2 2s2 2p6 3s1. Sodium has the outer configuration 3s1. Magnesium has the outer configuration 3s2, and after this is the atomic number 12. Then we write the atomic number 13, aluminium. The outer shell configuration, that is 3s2 3p1, 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 3p5, 3s2 3p6, up to argon 3s2 3p6 are over. And if we write the overall configuration of the argon, then we can say 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, and after 3p6 what comes? Potassium, and outer configuration 4s1, and calcium 4s2. Up to here 4s2 is over, and according to the above principle, after 4s2 what comes? 3d, and this series is called 3d series. And why it is so called 3d series? Because the outer, yani कि last electron that enters into the 3d subshell. And scandium has the atomic number 21, and we write the configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 up to here, and then 3d1. So 4s2 3d1, then titanium 4s2 3d2, then 4s2 3d3, and so on, and finally at the last we get zinc, and it has the configuration 4s2 3d10. Up to here 3d10 over. Now we will try to understand the configuration and the atomic sizes of this 3d series, how the atomic size changes on moving from left to right in this 3d series. देखिए, this is the electronic configuration of scandium having the atomic number 21. Then we write the configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d1. And if we write shell wise, then we can write the configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 and 4s2. This is the first shell, this is the second shell, this is the third shell, and this is the fourth shell. So scandium, the last electron enters into the 3d1, and this 3d1 is not the last shell, it is not the ultimate shell, it is the penultimate shell. Penultimate means outermost से one less. If outermost is 4, then D will be 3. और जो D सबशेल होते हैं in which the electron enters, that is one less than the outermost. If the outermost is 4, then D will be 3. If outermost is 5, D will be 4. If outermost is 6, then D will be 5. Like that.
Now if we write the electronic configuration of the next element, and that is titanium, atomic number 22, what the change will occur in this configuration? All the things will remain same, and change will occur only in the 3D, and the configuration will become 3D2 and 4s2. The outermost shell, that will remain as it is. This is the outermost shell, and this is also the outermost shell, but the last electron enters into 3D. So 3D1, 3D2. In the same way, titanium, it comes vanadium, atomic number 23. Configuration, all the things will remain same, and this 3D, that becomes 3D3, and the outermost shell, that is 4s2. So like that, we write the electronic configuration of 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. And in the same way, the electron enters into the d subshell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It means finally at the last, when we write the electronic configuration of zinc having the atomic number 30, then we write the configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 3d10, and then 4s2. So in the zinc, this is the first shell, this is the second shell, this is the third shell, and this is the fourth shell, last shell. Actually, when we move from scandium to zinc in the periodic table, in the left to right, then atomic size decreases, and we will study how the atomic sizes decreases. In the 10th class, in the explanation it is given, when we move from left to right in the periodic table, at every step there is an increasement of 1 proton in the nucleus. And as the 1 proton increases in the nucleus, the attraction of the nucleus on the outermost shell increases, and the outermost shell that comes more and more close to the nucleus. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम के जो न्यूक्लियस है उसमें टोटल प्रोटॉन्स विल बी 21, and titanium, the total proton present in the titanium, that is 22, because the number of protons are always equal to the atomic number. Here atomic number 21, protons are 21. Atomic number 22, protons are 22. Atomic number 23, the protons will be 23. So here the 21 protons are attracting the outermost electrons. Here the 22 protons are attracting the outermost electron. Here the 23 protons are attracting the outermost electron, and resultantly what happens, the number of protons on in the nucleus that increases from scandium to zinc. Finally in the zinc, the number of proton in the nucleus that becomes 30, and the 30 proton that increases the outermost shell. तो धीरे धीरे क्या होता है, जो न्यूक्लियर पुल है, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, दैट इंक्रीजेस ऑन द आउटरमोस्ट शेल, और आउटरमोस्ट शेल is slowly धीरे धीरे it comes more and more close to the nucleus. And finally, we can say the atomic size decreases on moving from left to right in the periodic table. ये हो गया general trend. If anybody asks you what happens about the atomic sizes on moving from left to right in the periodic table, then we can say on moving from left to right in the periodic table, the atomic size decreases. लेकिन अब इसमें थोड़ा सा fine discussion we should have, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो ट्रेंड है, जो चेंज होता है एटॉमिक साइज, वो क्या एक रेगुलर पैटर्न पर चेंज होता है या उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो दैट वी विल सी. एक वन वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन वी आर गोइंग टू हैव. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द वन एटम एंड द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम, एंड दिस इज द outermost shell. Suppose it has the atomic number 13, and if the atomic number 13, the number of protons in the nucleus that also 13, it means the 13 positive charges are there, and these 13 positive charges, they attract the outermost shell and outermost electron towards itself. And when we move toward the next element, that is atomic number 14, having the 14 positive charges, ठीक है, तो where the proton enters into the nucleus. Actually whenever there is an increasement of 1 unit of atomic number, जैसे atomic number 13, तो number of protons will be 13 and the number of electrons also will be 13.
and here the atomic number 14, the number of protons 14, and the number of electrons are also 14. Here the outermost electron that enters into the p subshell. तो p subshell का मतलब हो गया जैसे 3s2 और 3p1, एंड 14 में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी 3s2 एंड 3p2 आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन. 14 का जब आप लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p2 लाइक दैट. जब भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एक साथ दो काम होते हैं. वन प्रोटॉन इंक्रीजेस इन द न्यूक्लियस एज वेल एज वन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन द आउटर मोस्ट शेल और सबशेल. तो ये जो प्रोटॉन्स बढ़ते हैं न्यूक्लियस में, ये क्या करते हैं, ये आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. These protons which increase in the nucleus, they attract the outermost shell towards itself. लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं which enters into the s subshell and p subshell, ये इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्जेस को काउंटर बैलेंस करते हैं. काउंटर बैलेंस का मतलब हो गया कि जैसे when we move from 13 to 14, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन इंक्रीजेस, ये जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है ये क्या करेगा, यहाँ पर 13 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 14 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन क्या करेगा, इस आउटर मोस्ट शेल को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएगा. वो कहाँ बढ़ेगा, दैट विल इंक्रीज इनटू द पी सबशेल. इसके बाद जब हम आते हैं एटॉमिक नंबर 15 पर, तो this is the nucleus and here the 15 positive charges are there, and now these 15 positive charges that will try to attract the outermost shell towards itself, but the electron also enters and that enters into 3p and the outer configuration becomes 3p3. So what I am going to explain you the very important thing कि when there is a increasement of 1 unit of atomic number, always one proton increases, one electron increases. Proton increases in the nucleus and the electron increases in the outermost shell, or you can say outermost subshell. S और P के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है दैट इज मैक्सिमम. हमने आपको पहले क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द स्क्रीनिंग इफेक्ट और द शील्डिंग इफेक्ट दैट इज मैक्सिमम शोन बाय द S subshell and then P subshell and then D subshell and then F subshell. सबसे ज्यादा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो S का होता है, फिर P का होता है, फिर D का होता है, फिर F का होता है. इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही हम 13 से 14 पे आएंगे एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन इस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ये जो P का इलेक्ट्रॉन है, जो P1 से P2 हुआ, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके अट्रैक्शन को काउंटर बैलेंस करेगा. जो इफेक्ट आउटर मोस्ट शेल पे पड़ रहा है उसको ये रोक देगा, एंड दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट. इसका मतलब जो पी के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को स्क्रीन करते हैं, उसको रोकते हैं, जिससे न्यूक्लियस का जो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन है एक प्रोटॉन का वो आउटर मोस्ट शेल तक नहीं पहुंच पाता है, और जो एटॉमिक साइज है उसमें बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता है. इसके बाद जब हम आते हैं 14 से 15 पर, तो फिर एक प्रोटॉन बढ़ा. जैसे ही प्रोटॉन बढ़ता है ये आउटर मोस्ट शेल को और खींचने की कोशिश करता है अपनी तरफ, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है हमारा P में, और P के इलेक्ट्रॉन फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं और न्यूक्लियस के इफेक्ट को आउटर मोस्ट पर पहुंचने से रोकते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है उसका अट्रैक्शन आउटर मोस्ट पर पहुंचने से रुक जाता है. और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ऑफ द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन ऑफ द S एंड P सबशेल, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, जिससे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा आउटर मोस्ट शेल पे नहीं पहुंच पाता है. अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि जहां पर एक प्रोटॉन बढ़ेगा लेकिन साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल इंटर इनटू द डी सबशेल. देखिए नाउ वी स्टडी इन द डी ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे दिस इज द एटॉमिक नंबर 21, तो टोटल 21 प्रोटॉन्स आर देयर इन द स्कैंडियम, और जैसे ही हम आते हैं 21 से 22 पर, वन प्रोटॉन इंक्रीजेज इन द न्यूक्लियस ऑफ द टाइटेनियम, लेकिन साथ ही साथ वन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज इन द डी सबशेल. लेकिन जो डी सबशेल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है दैट इज लेस देन S एंड P, और डी का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है बहुत कम होता है. इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है ये इस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसको डी के इलेक्ट्रॉन रोक नहीं पाते हैं. तो रिजल्टिंग इफेक्ट क्या होता है कि न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट शेल पे इंक्रीज हो जाता है. देखिए इधर से एक साइड से न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ा, और अगर इलेक्ट्रॉन S और P में जा रहे हैं तो S और P के इलेक्ट्रॉन उसको काउंटर बैलेंस कर देते हैं, न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट पर नहीं पहुंच पाता है. लेकिन अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता है लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारा डी सबशेल में जाता है, तो डी सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चार्ज को स्क्रीन नहीं कर पाते हैं, उसको रोक नहीं पाते हैं,
जिससे क्या होता है, न्यूक्लियस का मैक्सिमम इफेक्ट दैट इंक्रीजेस ऑन द आउटर मोस्ट शेल, और जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जो एटॉमिक साइज होता है दैट विल डिक्रीज। ऐसे ही आते हैं 23 पर, वन मोर प्रोटॉन इंक्रीजेस इन द न्यूक्लियस, और ये जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है दैट विल आल्सो अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट शेल मोर टुवर्ड इटसेल्फ बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द डी सबशेल, और डी सबशेल का जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल नॉट क्रिएट सो मच स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियस की पावर को ये रोक नहीं पाएगा, जिससे मैक्सिमम न्यूक्लियस की पावर आउटर मोस्ट पर पहुंच जाएगी, और ये वाला जो आउटर मोस्ट शेल है वो थोड़ा सा और अंदर की तरफ आ जाएगा। इसके बाद आते हैं वेरिडियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर आता है क्रोमियम, और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। वी राइट द कॉन्फिगरेशन एज इट इज and this becomes 3d4 and then 4s2, and I already told you that 3d4 configuration, that is unstable configuration, and due to the extra stability this chromium takes one electron from this 4s, and this 3d4 that becomes 3d5, and the real configuration of the chromium that becomes 3d5 and 4s1, like that. ठीक है, आफ्टर क्रोमियम व्हाट कम्स, मैग्नीज, एंड मैग्नीज हैज द एटॉमिक नंबर 25। नाउ सी हाउ टोटल 5 प्रोटॉन्स हैव बीन इंक्रीज्ड इन द न्यूक्लियस, लेकिन साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एंटरिंग इनटू द डी सबशेल, और मैग्नीज का जब कॉन्फिगरेशन हम लोग लिखेंगे तो दिस कॉन्फिगरेशन अप टू हियर इट विल रिमेन सेम, एंड द आउटर कॉन्फिगरेशन दैट विल बिकम 3d5 एंड 4s2। अब यहां पर 5 प्रोटॉन बढ़ गए, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन बढ़े, लेकिन इलेक्ट्रॉन पड़े हैं हमारे डी में, और ये जो डी के 5 इलेक्ट्रॉन है ये स्क्रीन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल का इफेक्ट, सॉरी न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट शेल पर बढ़ता जाएगा, और जो एटॉमिक साइज है स्कैंडियम का एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा, फिर टाइटेनियम का थोड़ा कम, उसके बाद वेनेडियम का और कम, इट मीन द आउटर मोस्ट शेल दैट कम्स मोर एंड मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, फिर क्रोमियम और उसके बाद मैग्नीज। तो मैक्सिमम एटॉमिक साइज है स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम एंड देन मैग्नीज, और उसके बाद में मैग्नीज के बाद नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज आयन, एटॉमिक नंबर 26, एंड देन वी राइट द कॉन्फिगरेशन, एंड एट द लास्ट इट बिकम्स 3d6 4s2। अब यहां पर थोड़ा सा ये देखना है कि जो डी सबशेल है 1 2 3 4 एंड 5, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that have become 6, 1 2 3 4 5 and 6। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक्यूमुलेट होके इनकी जो इंटेंसिटी है, इनकी जो डेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अब ये न्यूक्लियस के इफेक्ट को स्क्रीन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑल टुगेदर क्या करते हैं, जैसे ही अगला जो नेक्स्ट हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा 26 के बाद 27, एंड 27 होता है हमारा कोबाल्ट का, कोबाल्ट 27, तो अब जो ये प्रोटॉन बढ़ेगा, तो जैसे ये प्रोटॉन बढ़ेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं D6 और D7 ये इसके एक्स्ट्रा प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज और इसके न्यूक्लियर पुल को स्क्रीन कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं, और जैसे ही रोकेंगे तो एटॉमिक साइज की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो इसके बाद की जो वैल्यू है उसके बाद ऐसे आपका आयरन आएगा, आयरन के बाद आपका कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट के बाद निकिल आएगा, और निकिल के बाद कॉपर आएगा। इनके एटॉमिक साइज में ज्यादा फर्क नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि 26, 27 और उसके बाद 28 और 29 ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे 26, 27, 28 और 29, ये लगभग जो है यहां तक इनके एटॉमिक साइज कांस्टेंट हो जाते हैं। इसलिए जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब डी सबशेल में बढ़ जाते हैं तो उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट होने लगता है और वो न्यूक्लियस के पुल को रोक देते हैं, और जब न्यूक्लियस को पुल को रोकेंगे तो एटॉमिक साइज कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन जब हम लास्ट में पहुंचते हैं दैट इज एटॉमिक नंबर 30, तो एटॉमिक नंबर 30 पे D10 हो जाता है, और D10 में व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द डी सबशेल तो इनके बीच में एक रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, और इस रिपल्शन को नाम देते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। एंड ड्यू टू दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो हमारा डी सबशेल है वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है, और एक्सपेंड करने से यहां पर आके एटॉमिक साइज हमारा थोड़ा सा फिर रेस कर जाता है इस तरीके से। तो ये जो ऑर्डर है हमारा वो ये है कि फर्स्ट टिल द मिडिल एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट एंड फाइनली इट इंक्रीजेस। और लेफ्ट टू राइट की बात करें तो फर्स्ट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस टिल द मिडिल, then becomes constant and finally at the last at the zinc the atomic size increases। तो ये हमारा एटॉमिक साइज का ऑर्डर होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ हियर वी नीड टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
and that is called inert pair effect. And see what is the mean of inert pair effect. So I hope the electronic configuration is clear to you. When we write the electronic configuration of this potassium, then we can write 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s1. When we write the electronic configuration of calcium, then we write 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. And after 4s2, when we write the electronic configuration of the scandium, then one electron extra that will enter into the d subshell and outer configuration that become 4s2 3d1. देखिए ये हो गया outer configuration 4s1, ये outer configuration 4s2, and after 4s2 this one electron enters into the d3d subshell and the configuration become 4s2 3d1. Next titanium 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन ये हो जाता है 4s1 3d5 और ये हो जाएगा 4s2 3d5, फिर 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, ये होगा 4s2 3d9 कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, लेकिन हो जाता है हमारा 4s1 और 3d10 और ये हो जाता है हमारा 4s2 3d10. इट मीन्स as we move from scandium to zinc, the one electron increases in the d subshell, mainly in the 3d subshell. तो जैसे ही हम स्कैंडियम से टाइटेनियम पे आते हैं, एक प्रोटॉन हमारा बढ़ता है न्यूक्लियस पर और एक इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ता है डी सबशेल में. ठीक, प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और डी सबशेल उसको रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, जो वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, उसका अट्रैक्शन आउटर मोस्ट पे मैक्सिमम पहुंच जाता है. ठीक है, अब जब आते हैं टाइटेनियम से वेनेडियम पर, फिर हमारा वन प्रोटॉन बढ़ता है और उस प्रोटॉन का जो पुल है वो सीधा सीधा हमारा आउटर मोस्ट शेल पे पहुंच जाता है, लेकिन जो हमारा डी इलेक्ट्रॉन है वो उसको शील्ड नहीं कर पाता, उसको स्क्रीन नहीं कर पाता है. तो ऐसे जब हम स्कैंडियम से लेकर जिंक तक पहुंचते हैं तो हमारे 10 proton that increase in the nucleus और 10 electron they increase in the d subshell. तो जो यहां से यहां तक जो 10 एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, उन एक्स्ट्रा प्रोटॉन की ताकत आउटर मोस्ट पर पहुंच जाती है और जिसकी वजह से जो गैलियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो 10 एक्स्ट्रा प्रोटॉन का अट्रैक्शन फील करता है. इसके जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे 4s2 4p1, तो ये जो 4s2 4p1 है दैट विल फील द एक्स्ट्रा अट्रैक्शन ऑफ 10 प्रोटॉन. वैसे क्या होता है कि अगर 10 प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस में बढ़े और 10 इलेक्ट्रॉन हमारे s और p में चले गए तो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, लेकिन जब d में मारे गए तो हमारे जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे बेकार हो गए, लेकिन जो 10 प्रोटॉन है वो हमारे बढ़ गए. और ये जो हमारे 10 प्रोटॉन है ये हमारे 4s2 4p1 यानी गैलियम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. अब हम आते हैं, वी मूव फॉरवर्ड साइड, और फॉरवर्ड साइड आने के बाद अब हम आते हैं 5th पीरियड पर, रुबिडियम और उसके बाद स्ट्रॉन्शियम और फिर हमारा यट्रियम. यट्रियम का एटॉमिक नंबर 39 और इसका जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 4d1 5s2, फिर 4d2 5s2 और इस तरीके से कंटिन्यू करेगा और यहां तक आते आते हमारा हो जाएगा कैडमियम का जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा हमारा 5s2 और 4d10. और इसके बाद आता है इंडियम. इंडियम का जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p1. जो इंडियम का आउटर मोस्ट शेल है वो अब 20 एक्स्ट्रा प्रोटॉन का अट्रैक्शन फील करेगा, क्योंकि जब हम इंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल एंड एट द लास्ट हम लिखेंगे 5s2 5p1, तो बीच में कहीं ना कहीं 3d10 भी भर चुका होगा और ये 4d10 भी भर चुका होगा. तो 3d10 हमारा बेकार हो गया और 4d10 बेकार हो गया, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन हमारे बेकार हो गए, लेकिन जो 20 प्रोटॉन है, जो एक्स्ट्रा चार्ज है, वो हमारा यहां पर इस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा एंड दैट विल अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट शेल मोर एंड मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ. इट मींस extra 20 proton will attract the outermost shell of indium towards itself. Now we come to the next period and that is the 6th period. और 6th period में that is the cesium and barium और उसके बाद lanthanum. Lanthanum has the configuration atomic number 57 और after lanthanum it comes mercury that has the atomic number 80. ठीक,
और उसके बाद ये थैलियम, थैलियम का जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज 6s2 6p1। अब हम देखेंगे ये जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है थैलियम का, ये कितने एक्स्ट्रा प्रोटॉन का अट्रैक्शन फील करेगा। व्हेन वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द थैलियम, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कम 6s2 6p1, लेकिन उससे पहले क्या क्या भर चुका होगा वो हमको देखना है। जब हम कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखेंगे तो उससे पहले कहीं बीच में हमारा 3d10 आएगा, कहीं बीच में हमारा 4d10 आएगा, कहीं बीच में हमारा 5d10 आएगा, और यहां पर ये जो लैंथेनम है, ये पूरी जो सीरीज है फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम 58 टू 71, ये पूरी सीरीज हमारी यहां पर होती है। और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, ये फिल होंगे 4f1 से लेकर और 4f14 तक। इट मीन्स जो 14 इलेक्ट्रॉन्स विच इंटर इनटू द f सबशेल, जिनकी पोजीशन यहां पे होनी चाहिए, इनका तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, लेकिन 14 प्रोटॉन दैट विल इंक्रीज इन द न्यूक्लियस। तो व्हेन वी डिस्कस द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ थैलियम, तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है, ये इस 10 प्रोटॉन का एक्स्ट्रा 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फील करेगा। इस वाले यानी 4d10 जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हमारे 4d1 से लेकर 4d10 तक, ये 10 प्रोटॉन हमारे बढ़ेंगे। फिर हमारे ये जो 1 से लेकर और 14 जो इलेक्ट्रॉन हमारे 4f में बढ़े हैं, इसके अपोजिट हमारे 14 प्रोटॉन न्यूक्लियस पे बढ़ेंगे। और ये है हमारी 5d सीरीज। मतलब कितने एक्स्ट्रा प्रोटॉन का चार्ज हमारा ये फील करेगा। 10 इलेक्ट्रॉन यहां बेकार हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहां बेकार हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन यहां बेकार हो गए, और 10 इलेक्ट्रॉन हमारे 5d में बेकार हो गए। यानी कि 10 10 10 दैट इज 30 और 14 दैट इज 44। इट मींस 44 इलेक्ट्रॉन हमारे बेकार हो गए जिन्होंने शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं किया, लेकिन जो 14 प्रोटॉन है विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये इस आउटर मोस्ट शेल को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये जो 4s2 4p1 है गैलियम का, that will feel the attraction of extra 10 proton, 5s2 5p1 that will feel the attraction of extra 20 proton, and 6s2 6p1 that will feel the attraction of extra 44 proton। और ये जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है, इससे फर्क क्या पड़ेगा वो हमको देखना है। देखिए गैलियम व्हेनेवर वांट टू टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन, तो इसके सामने दो पॉसिबिलिटी हैं। आइदर इट लूजेस इट्स 1 इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द पी सबशेल। इफ इट लूजेस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द पी सबशेल, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ये +1 शो करेगा। इफ इफ इट इज नीडेड then it will lose 2 more electron from s subshell, और ऐसे में when all the 3 electrons will be released from here, then it will show the oxidation state +3। तो इसके सामने दो ऑप्शन है, either involvement of the p electron then it shows +1 oxidation state, or the involvement of all 3 electron and shows the oxidation state +3। कभी भी s के इलेक्ट्रॉन पहले नहीं निकलेंगे, पहले p के निकलेंगे। if it is needed then s electron will be involved। ऐसे यहां देखिए 5s2 5p1, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +1, तीनों निकालेगा तो +3। यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +1, तीनों निकालेगा तो +3। अब हमें यह देखना है कि जब भी कभी गैलियम इंडियम और थैलियम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनके जो पी के इलेक्ट्रॉन है वो तो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, क्योंकि अगर पी के एक इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व नहीं होगा इट मींस दैट विल नॉट टेक पार्ट इन एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो whenever gallium, indium and thallium, all these 3 elements, they want to react and they react with other elements, then their last electron which are present in the p subshell that usually take part in the chemical combination। हमको देखना है ये जो s के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कहां पर आसानी से करेंगे, यहां पर या यहां पर। ये तो हमारे कर ही लेंगे। अब यहां जो 4s2 है ये 10 एक्स्ट्रा प्रोटॉन का अट्रैक्शन फेस कर रहा है, और ये जो 6s2 है दैट इज फेसिंग द अट्रैक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा 44 प्रोटॉन। तो ऐसे में इसके लिए थैलियम के लिए इस 6s के इलेक्ट्रॉन्स का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर हम थैलियम की बात करें इट विल बेटर शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कंपाउंड बनाना चाहेगा और इसके 6s के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। तो इसके लिए +3 के कंपाउंड बनाना आसान है और इसके लिए +1 के कंपाउंड बनाना आसान है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात करें, सो ऑल दिस 13 ग्रुप एलिमेंट दे शो 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, वन इज +1 एंड वन इज +3। तो अगर हम आपसे पूछें ये कौन से कंपाउंड बनाना प्रेफर करेगा, ये +1 वाले, तो इसकी जो +1 है वो हाईएस्ट स्टेबल होती है और इसकी जो +1 गैलियम की है वो लोएस्ट स्टेबल होगी। लेकिन जब हम +3 की बात करते हैं तो गैलियम के ऑल 3 इलेक्ट्रॉन विल इजीली
विल बी इजिली इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो इसके लिए +3 का कंपाउंड बनाना आसान है, लेकिन इसके लिए +3 का कंपाउंड बनाना आसान नहीं है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो 13 ग्रुप एलिमेंट है दे शो 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, वन लोअर oxidation state and one higher oxidation state. Lower oxidation state is only due to the involvement of p electron, and higher oxidation state that is due to the involvement of p and s both the electrons. और ऐसे में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज करती है, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज करती है। और ऐसे में आप एक चीज याद कर सकते हैं, कॉमन वर्ड है LIC, और LIC का मतलब होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज करती है। इसके लिए +1 वाले कंपाउंड बनाना आसान है, इसके लिए +3 वाले कंपाउंड बनाना आसान है। तो अब है क्या, व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट ये है कि व्हेन वी मूव in the p block element and when we discuss the stability of the oxidation state in the p block element, तो those element of the p block element which come just after d block element, यानी p block के वो एलिमेंट जो d block element के बाद में आते हैं, उसमें जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो s इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना डिफिकल्ट हो जाता है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d एंड f इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब सिंपल सी डिफिनेशन अगर बताएं तो इस हिंड्रेंस को, जो ये s इलेक्ट्रॉन के जो s सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना जो डिफिकल्ट होता है, इसको एक वर्ड देते हैं दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है हिंड्रेंस, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी का कम होना। तो हम ये कहेंगे द रिलक्टेंस ऑफ द s इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d and f electrons is called inert pair effect. So whatever we are studying in the 13 group, the same we can study for the 14 group. So just have a look of the oxidation state of 14 group element. The same concept we can study for the group 14. See, this is the group 14: carbon, silicon, germanium, tin and lead. And these germanium, tin and lead, these elements only, they are coming after the d block element. Germanium outer configuration 4s2 4p2, tin outer configuration 5s2 5p2, and lead outer configuration 6s2 and 6p2. So as I have explained you for the group 13, the same concept will be used for group 14. This outer configuration, outer electron of the germanium 4s2 and 4p2, that will face the attraction of the extra 10 protons, and this tin that will face the attraction of the extra 20 proton, and this lead that will face the attraction of the extra 44 proton. तो ये जो 4s2 4p2 है ये 10 एक्स्ट्रा प्रोटॉन का अट्रैक्शन फेस करेगा, ये 20 एक्स्ट्रा प्रोटॉन का अट्रैक्शन फेस करेगा, और ये 44 एक्स्ट्रा प्रोटॉन का अट्रैक्शन फेस करेगा। तो इसमें भी वही है कि whenever this germanium, tin and lead they need to react with the other element, तो इनके पास भी दो ऑप्शन है, either they take part in the chemical combination due to the involvement of only p subshell or p and s both. If they involve only the p electron, then they show the oxidation state of +2, and if they show the involvement of p and s both the electron, then they show the oxidation state of +4. यानी कि जो 14 ग्रुप एलिमेंट है उनके लिए दो ऑप्शन है, either they show the +2 oxidation state or they show the oxidation state of +4. ये this is called lower valency and this is called higher valency. Lower valency is due to the involvement of p electron, higher valency is due to the involvement of p and s both the electron. अब हमें ये देखना है कि इस +2 और +4 में किस एलिमेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अभी हमने आपको बताया ये 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फेस करेगा और ये 44 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फेस करेगा, ठीक है। तो p के इलेक्ट्रॉन नॉर्मली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं whenever these element they want to react with other element, जो those electron which are present in the p subshell they take part in the chemical combination. हमें देखना है कि जो s के इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर जो 4s है 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन, यहां जो 6s है ये 44 एक्स्ट्रा प्रोटॉन का अट्रैक्शन। तो इसके लिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना मुश्किल है, इसके लिए आसान है। तो ये क्या करेंगे, ये अपने ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करते हैं या शेयर करते हैं एंड
केमिकल कंपाउंड बनाते हैं और ऐसे में इनके लिए +4 के कंपाउंड बनाना आसान है। लेकिन ये जो एलिमेंट है 6s2 एंड 6p2, इसके लिए 6s के इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपकी +2 होती है। इसका मतलब ये जो जर्मेनियम है ये +4 वाले कंपाउंड बनाना ज़्यादा प्रेफर करेगा और ये जो लेड है ये +2 के कंपाउंड बनाना प्रेफर करेगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे s इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना डिफिकल्ट होता जाएगा। एंड दिस रिलक्टेंस ऑफ द s इलेक्ट्रॉन to take part in the chemical combination due to the poor shielding effect of d and f electron is called inert pair effect. Thank you.